Hello students, today I will discuss about our next chapter, some applications of trigonometry. In this chapter, we study about the height and distance of an object from your eyes when you see the objects in upward direction. देखिए, it is given a tower या मीनार. Okay, here you lie. यहाँ से आप ऑब्जर्व कर रहे हैं. ओके, सो दिस इज द हॉरिजेंटल लेवल ऑफ योर आइज. सो इस हॉरिजेंटल लेवल ऑफ योर आइज से और इट इज़ लाइन ऑफ साइट्स. जब हम इस टॉप को देख रहे हैं, ये आपका हॉरिजेंटल लेवल है ए बी. और जब हम इस टॉप को सी पॉइंट्स को जब देखेंगे ऊपर की तरफ, सो इट मीन्स इट मेक्स एन एंगल ऑफ एलिवेशन. ओके, so angle of elevation lie between line of sights and horizontal level of your eyes. So in this figure, the line AC drawn from the eye of the students to the top of the minar is called the line of sight. Top of the minar is called it is called line of sight. The students is looking at the top of minar. The angle BAC the angle BAC so formed by the line of sight with horizontal is called angle of elevation. So angle of elevation with horizontal, मैंने आपको बताया with horizontal and line of sights के बीच का जो एंगल आपका बनेगा, it is called an angle of elevation. So first of all you write the definition of angle of elevation from here. And thus the line of sight is the line drawn from the eye of an observer to the point in the object view by the observer. ये जो कोई ऑब्जर्वर्स है, जैसे यहाँ पे ये काइट है, ये फ्लाई कर रहा है यहाँ पे. सो दिस इज, यहाँ पे आप स्टैंड कर रहे हैं. सो दिस इज योर हॉरिजेंटल लेवल ऑफ योर आइज. सो ये हॉरिजेंटल लेवल ऑफ आइज का और लाइन ऑफ साइट्स के बीच के, जैसे यहाँ पे ये काइट है, इसको आप देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन. ठीक है. नाउ एंगल ऑफ डिप्रेशन. देखिए यहाँ पे जैसे आप किसी छत पर बैठे, आप यहाँ पे देखिए यहाँ पे, और यहाँ छत पर दिस इज द हॉरिजेंटल लेवल ऑफ योर आइज. और यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल कोई बॉल होगा, फुटबॉल हो सकता है. सो आपके इस हॉरिजेंटल लेवल से और ये आपकी लाइन ऑफ साइट है, जैसे आप नीचे की तरफ आप देखते हो, दिस इज लाइन ऑफ साइट. सो इनके बीच का ये जो एंगल्स है, हॉरिजेंटल लेवल और लाइन ऑफ साइट के बीच का एंगल क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन. सो यहाँ से देखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन, द लाइन ऑफ ए, यहाँ से द लाइन ऑफ साइट इज बिलो द हॉरिजेंटल लेवल. ओके, बिलो द हॉरिजेंटल लेवल. हॉरिजेंटल लेवल से जो बिलो ऑफ लाइन ऑफ साइट है, द एंगल्स ऑफ फॉर्म बाय द लाइन ऑफ साइट with the horizontal level. This is the line of sight and this is the horizontal level. The angle जो इसके साथ जो बनाया जाता है is called the angle of depression. So ये आप definition write कर लेंगे angle of depression की. Thus the angle of depression of a point on the object being viewed is the angle formed by the line of sight with the horizontal when the point is below the horizontal level. Okay, now we start our exercise. These are the main important concepts in this exercise: angle of elevation and angle of depression. Okay, now come to our exercise. In exercise 9.1, question number first is: a circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground is 30 degree. This is the given figure. So in this chapter, first of all, make the figures according to given information, then find out the values. So first of all, make the given figure. A, B, C is a right angle triangle. You have to given. This is the 20-meter long rope. Okay.
ये जो आर्टिस्ट है सर्कस आर्टिस्ट वो इस रोप पे यूं ऊपर की तरफ चढ़ रहा है लॉन्ग रोप पे, जो कि 20 मीटर लॉन्ग गिवन है। एंगल ऑफ एलिवेशन इज द गिवन विथ हॉरिजेंटल लेवल एंड इट्स रोप इज 30 डिग्री, इट इज गिवन। नाउ फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट द हाइट ऑफ द पोल, इस पोल की हाइट फाइंड आउट करनी है। ए बी इज द पोल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट गिवन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, लेट ए बी इज द, या यहाँ पे आप ए बी इजकस टू एच, इसको एच पुट कर सकते हैं। लेट ए बी इजकस टू एच बी द हाइट ऑफ टावर ऑफ पोल, ओके, एंड AC इजकस टू 20 मीटर लॉन्ग रोप। देखिए ये आपको शो करना है कि टावर कहाँ से है, रोप कौन सी है, ये आपको ज़रूर राइट करना होगा। ओके, नाउ वी स्टार्ट द सॉल्यूशन। इन ट्रायंगल ABC या ट्रिग्नोमेट्रिक जो आपके रेशियोज है वो अप्लाई करेंगे, उनकी साइड्स का रिलेशन शो करना है बस विद एंगल। एंगल आपका यहाँ पे लाई कर रहा है, देखिए 30, ये 30 एंगल यहाँ लाई कर रहा है, इसके अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, यानी साइन की फॉर्म में निकाल लीजिए आप। साइन 30 डिग्री, साइन 30 इट इज P/H होता है। ओके, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। सो यहाँ से परपेंडिकुलर क्या है आपके पास, HAB, and hypotenuse is right angle opposite side is 20, it means AC. Now sin 30 value is 1/2, AB value is H, and AC is 20. Now you cancel by 2 in denominator, 2 1 ja 2 or 2 10 ja. Left hand side we get 1/1 and right hand side we get H/10. So this implies 1/1 is equals to H/10. Now find out H. Now you cross multiply, H is equals to 10 meters. So height of the pole is 10 meter. Okay. अगर आपके पास इन राइट एंगल ट्राइंगल कोई एक साइड गिवन हो, कोई भी एनी साइड है और एक एंगल हमें गिवन है, तो हम इसके बाकी के जो कौन हाइट्स हैं या बेसिस हैं या हाइपोटेन्यूस है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे कोई कंपल्सरी नहीं कि मैंने साइन की फॉर्म में साइन का रेशियो फाइंड आउट किया, यहाँ से तो आप कोस से भी इसको सॉल्व कर सकते हो, B/H होता, बट यहाँ पे बेस गिवन नहीं है, आपको B चाहिए नहीं, बेस फाइंड आउट करना नहीं है, इसलिए हमें AB चाहिए था जो कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसलिए साइन का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई किया। नॉर्मली अधिकतर क्वेश्चंस के अंदर टेंजेंट अप्लाई होगा आगे आगे। नाउ यू क्वेश्चन नंबर सेकेंड, a tree break due to storm and the broken part bent so that the top of tree touch the ground। देखिए फॉर एग्जांपल आप ये एक ट्री लेंगे, लेट AB be the height of the tree which is broken, मान लीजिए ये यहाँ से टूट गया एट पॉइंट C, और इसका ये जो ब्रोकन पार्ट है ये यहाँ पे टच कर गया है हॉरिजेंटल के ऊपर, यूँ इसके यूँ आपका ये पार्ट टूटकर यहाँ पे आ गया, और ये आपका ग्राउंड है, और इस ग्राउंड लेवल के साथ ये जो एंगल बना रहा है इसमें गिवन है मेकिंग एंगल 30 डिग्री। ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट बेंड हो गया, मुड़ गया, सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड, मेक एन एंगल 30 विद इट, ग्राउंड के साथ 30 डिग्री बना रहा है जिसका वो टॉप टच किया गया। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टच द ग्राउंड इज 8, जहाँ से ये ट्री टच किया गया है और ये ओरिजेंटल ये आपका ग्राउंड, इसका जो बॉटम है ग्राउंड से वो आपके पास डिस्टेंस गिवन है 8 मीटर। ABC here is point D. Now find out the height of the tower. It means BC is equals to CD. BC CD की इक्वल है क्योंकि ये जो पार्ट्स है टूट कर यहाँ टच हो गया, यानी आपको AB फाइंड आउट करना है। AB के अंदर क्या क्या प्लस होगा, AC प्लस BC। सो यू फाइंड आउट AC and CD. Here is angle given 30 degree. So first of all write let AB be the height
of a tree. Okay, now in triangle ACD, in triangle ACD is equals to, so in triangle ACD में आप टी रेशो अप्लाई कर दें, इसका इस एंगल का रिलेशन फाइंड आउट कर लीजिए। ऐसे फाइंड आउट करना है, सो एंगल अपोजिट साइड इज परपेंडिकुलर, इट मीन्स पी। सो आप कर सकते हो AC अपॉन में AD, AC अपॉन AD यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इट मीन्स क्या बनेगा ये टेंजेंट, और एंगल क्या गिवन है यहाँ पे 30 डिग्री, tan 30 डिग्री। वैल्यू ऑफ AC फाइंड आउट होगी, 80 इज गिवन 8 इज इक्वल्स टू टेंजेंट 30 इज 1/√3। सो नाउ यू क्रॉस मल्टीप्लाई, फाइंड AC, AC इंटू में √3 इज इक्वल्स टू 8 एंड AC इज इक्वल्स टू डिवाइड बाई √3, 8/√3 मीटर। नाउ अगेन अब आपको CD फाइंड आउट करना है, सो इसके लिए B/H अप्लाई कर दीजिए आप, AD अपॉन में CD, AD अपॉन CD इट इज cos 30 डिग्री, B/H इज cos। सो वैल्यू ऑफ AD 8, CD फाइंड आउट करेंगे, cos 30 की वैल्यू क्या होती है या वो आना चाहिए, ये सभी वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। cos 30 की वैल्यू क्या होती है, yes cos 30 is √3/2। now you cross multiply, CD multiply √3 is equals to 2 8 जा 16। now from here value of CD is 16 upon √3। now find out AB, AB is the sum of AC plus BC and BC is equals to CD, क्योंकि इसका ये ट्री का ब्रोकन पार्ट है। सो आपको हाइट ऑफ ट्री चाहिए, सो इन दोनों को हम प्लस कर देंगे, AC प्लस CD। नाउ हाइट ऑफ ट्री मीन्स AB इज इक्वल्स टू AC प्लस BC एंड BC इज इक्वल्स टू CD, सो इट मीन AC प्लस CD वेयर BC इज इक्वल्स टू CD। सो वैल्यूज पुट कर दीजिए, वैल्यू ऑफ AC इज 8/√3 प्लस वैल्यू ऑफ CD इज 16/√3। देखिए यहाँ डिनोमिनेटर सेम है, सो न्यूमरेटर्स को प्लस कीजिए, 24/√3। नाउ यू सिंप्लीफाई इट, 8 इंटू 3 राइट कर सकते हैं 24 को। ओके, सो इस 3 को आप क्या राइट कर सकते हो, √3 इंटू √3 अपॉन में √3। सो √3 से √3 कैंसिल, देन वी गेट 8√3 मीटर हाइट ऑफ द ट्री। Next question, a contractor plans to install 2 slides for the children to play in a park for children below the age of 5 years. And she prefers to have a slide whose top is a height 1.5 meter and is inclined at an angle 30 degree to the ground. Whereas the elder children, बड़े बच्चों के लिए क्या है, she wants to have a step slides at a height of 3 meter and inclined at an angle 60 to the ground. What should be the length of the slides in each case? दोनों केसेस में हमें स्लाइड्स की लेंथ फाइंड आउट करनी है। देखिए स्मॉल जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए ये जो स्लाइड की जो हाइट है, जो फिसलन पट्टी आप कहते हैं, इट्स हाइट इज़ 1.5 मीटर। ओके, इसका ये जो इसके साथ ग्राउंड के साथ इसका एंगल ऑफ एलिवेशन आपको गिवन है यहाँ पे 30 डिग्री। ओके, नाउ फाइंड आउट दिस लेंथ, ये लेंथ आपको फाइंड आउट करना है। हियर गिवन द नेम ऑफ द पॉइंट्स ABC। सो इन ट्रायंगल ABC आप फाइंड आउट कर सकते हो यहाँ से, दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज P/H, यानी साइन के अंदर BC अपॉन में AP, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या बन जाएगा, साइन थीटा, थीटा हियर इज 30। सो वैल्यू ऑफ BC इज 1.5, AB फाइंड आउट कर लेंगे, साइन 30 की वैल्यू क्या होगी 1/2। नाउ यू क्रॉस मल्टीप्लाई, वी गेट ये AB और 1.5 और मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल्स टू 3 मीटर। सो इस स्लाइड की जो लेंथ है वो 3 मीटर आ गई। ऐसे ही जो लार्ज जो यंगर हैं उनके लिए भी आप सिमिलरली इसी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो। इसका एंगल गिवन है, इसकी हाइट 3 मीटर है, यहाँ पे ये 60 डिग्री होगा,
और फिर आप ये लेंथ फाइंड आउट कर लेंगे सिमिलरली इसी तरीके से। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में सिमिलरली ऐसे ही आपको फाइंड आउट करना है।